करवा दो. Okay, so we are going to start with revision of human eye and colorful world. Revision of human eye and colorful world. Eye and colorful world. Good morning, ma'am. All right. So first topic is refraction through a glass prism. Refraction through a glass prism. So we have taken a prism ABC. This is the incident ray. This is incident ray. I draw normal at the point of incidence. I draw normal at the point of incidence. The ray is traveling from rarer to denser medium, from air to glass. So it will bend towards the normal. Okay. So this is our refracted ray. Refracted ray, and angle that it makes with normal is angle of refraction. This is angle of incidence. Angle, according to the definition, is always made with normal of the corresponding ray. So if it is incident ray with normal, then this is angle of incidence. If it is refracted ray with normal, then this is angle of refraction. Once again the ray is going across this interface. Once again the medium is changing from denser to rarer. Now we again draw the normal. Now the ray bends away from the normal. This ray is emergent ray. And angle that the emergent ray makes with normal, that is angle of emergence. This is angle of emergence. Now producing incident ray backwards and emergent ray backwards, we get another angle delta, which is angle of deviation. So this is angle of deviation. So this is complete diagram showing refraction of light through a glass prism. इसी का एक्सपेरिमेंट हमने नेक्स्ट वीक करना है. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ व्हाट वी विल डू देयर. हमने इंसिडेंट रे ये ऐसे ड्रॉ कर ली, नॉर्मल ड्रॉ की. इंसिडेंट रे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी एंगल चूज कर लिया. सपोज 40 डिग्री का चूज कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो यहाँ पे 2 पिन्स लगाऊंगी मैं. ठीक है. ऑन इंसिडेंट रे आई विल बी फिक्सिंग 2 पिन्स 4 to 5 सेंटीमीटर अवे. 2 कॉमन पिन्स यहाँ पे इरेक्ट हो जाएंगे. राइट. देन आई लुक फ्रॉम दिस साइड ऑफ द प्रिज्म. इस साइड से जब मैं देखूंगी मुझे उन दोनों पिन्स की इमेज दिखेगी. उसी लाइन में एक आई क्लोज करके उसी लाइन में आई विल फिक्स 2 पिन्स मोर. शीट पे 2 पिन्स और मैं लगा दूंगी सो दैट ऑल द 4 पिन्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. 2 पिन्स तो उसकी इमेजेस थी, 2 ये और मैंने यहाँ पे लगा दी. अब उन दोनों पिन्स को ज्वाइन कर देंगे स्केल से उनके इंप्रेशन को, तो ये हमारे पास इमर्जेंट रे आ जाएगी. एक्सक्यूज मी अब मैम. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को ज्वाइन कर देंगे, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी. फिर हम नॉर्मल एक्सक्यूज मी मैम. तो बस इतना काम हमने करना है उस दिन कि 2 पिन इधर लगानी है, उनकी इमेज देख के 2 और लगा देंगे. सेम ऐसे ही ग्लास स्लैब का भी करना है. ठीक है. तो बस आप लोगों को मैं शीट की पिक भेज दूंगी, आप उसको फाइल पे पेस्ट कर लीजिए और उधर प्रोसीजर. ठीक है. तो बस आपने फिर अपनी फाइल कंप्लीट करके चेक करवा लेनी. राइट. यस. एक्सक्यूज मी मैम. You have raised hand. Deviation क्या होता है? Refraction through a glass prism. Next topic है dispersion of light. That is also related to a prism. तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो एक ही रे दिख रही है, डिस्पर्जन में 7 कलर्स क्यों दिखते हैं? बिकॉज देन वी यूज व्हाइट लाइट, सनलाइट. यहाँ पे लेजर लाइट फॉर एग्जाम्पल यूज की गई है जो एक कलर की, सिंगल कलर की है, मोनोक्रोमैटिक लाइट. मे बी रेड लाइट यूज की है या ग्रीन लाइट यूज की है, एक कलर की लाइट यूज की गई है, तो उसकी हमने रिफ्रैक्शन शो की है यहाँ. ठीक है. नाउ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. Splitting of white light into 7 colors
after passing through a glass prism. Splitting up of white light into 7 colors after passing through a prism. So I was checking your copies. I found कि some students ये ठीक diagram नहीं बनाया, तो look at it carefully. This is sunlight, white light, which is a mixture of 7 colors. ठीक है, पर जब ये प्रिज्म में से पास करती हैं तो सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं. एक बार और बेंड करोगे, एरो जरूर मार्क करना है और ऑर्डर जरूर मार्क करना है रेज का. विबग्योर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, विबग्योर शुड बी द ऑर्डर. ठीक है, डायग्राम करेक्टली आपने मार्क करना है, डायग्राम करेक्टली मार्क करना है. ठीक है, so definition is, what is dispersion of light? Splitting up of white light into 7 colors after passing through a glass prism. ठीक है, और what is the reason? Reason क्या है? Each color has different wavelength, different lambda. According to Cauchy's formula, wavelength and refractive indices are inversely proportional. So each color has different mu also. Since angle of deviation is dependent upon refractive index, because of different refractive indices, there are different angles of deviation also. So different colors, they get deviated through different angles. So that's why they get separated after passing through the prism. सभी का डेल्टा डिफरेंट है. अब इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड, क्या बताओगे? अभी तो जनरल हमने बताया कि सबकी डिफरेंट वो लैम्डा है, हेंस डिफरेंट म्यू है, हेंस डिफरेंट डेल्टा है. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड या वाई वॉयलेट कलर इज मोस्ट डेविएटेड, तो क्या आंसर दोगे? वही तो पूछा कि क्यों ज्यादा बेंड हो रहा है वॉयलेट कलर. आप ये बताओगे वॉयलेट कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, एंगल ऑफ डेविएशन भी मैक्सिमम. so it gets deviated through maximum angle, it gets deviated the most. This is the reason. Got it? ऐसे ही रेड कलर का आप बता सकते हो, it has got longest wavelength, so according to this formula, shortest refractive index, so smallest angle of deviation also, it gets deviated through smallest angle, minimum angle, so that's why it gets deviated the least. All right, clear? Cause of dispersion. Okay, so after dispersion of light we have Newton's recombination experiment. ठीक है, न्यूटन had taken two similar prism. उसने इसके आगे एक और प्रिज्म रख दिया in the opposite manner. ठीक है, he kept another prism in the opposite manner. ठीक है, तो ये सारे कलर जो हैं they recombined back into white light. This is Newton's recombination experiment. अब इसमें भी एक गलती ये करते हो आप लोग, मैंने कॉपीज देखी हैं कि उसमें आप लोग यहाँ ऑर्डर मेंशन नहीं करते हो, ये जरूर करना है विबग्योर. So I had to write there myself, you have to write yourself. White light 7 colors, 7 colors white light. ठीक है, एक स्प्लिट कर रहा है, दूसरा उनको फिर से रिकम्बाइन कर रहा है. सो दिस इज न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट. न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट. देख लो यहां तक कोई डाउट? क्लियर? ये डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है आपने. ठीक है, next topic is scattering of light. Scattering of light, and before that we also discussed rainbow formation. उससे पहले हमने रेनबो फॉर्मेशन भी डिस्कस की थी. हाउ इज रेनबो फॉर्म? रेनबो कब निकलता है? जब धूप निकली होती है, सनलाइट होती है और रेन शॉवर होके हटा होता है. रेन होने के बाद आपको दिखता है ना रेनबो.
तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर रेन शॉवर वो तो फिर वहां पे मॉइस्चर पहले ही होता है, हम लोगों को तभी दिखता है जब रेनफॉल होने के बाद, है ना। सो आफ्टर रेनफॉल टाइनी रेन ड्रॉप्स दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, वही मॉइस्चर होना चाहिए एयर में, तो दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, दीज टाइनी रेन ड्रॉप्स एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म्स की तरह एक्ट करती हैं. सो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन देम dispersion of light takes place and we see a band of 7 colors. So this is how rainbow is formed. डायग्राम क्लियर है, मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है. जो सेकेंडरी रेनबो है वो ब्राइटर होता है, ऊपर होता है. प्राइमरी रेनबो फेंटर होता है, नीचे होता है. सेकेंडरी रेनबो में 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड 4 रिफ्रैक्शंस टेक प्लेस. So rainbow formation is not only result of dispersion of light, it is because of dispersion, refraction, total internal reflection. All the 3 phenomena together. उसमें 2 total internal reflections from the diagram that is clear and 4 refractions are taking place. But in case of primary rainbow, 1 total internal reflection and 2 refractions are taking place. ठीक है, and they subtend different angles at the eye of observers, so that's why rainbow appears to be a curve. It doesn't appear in the form of straight lines of colors, it appears in the form of arc. All right, next is scattering of light. क्या होती है scattering of light? Redistribution of light in all the directions by air molecules present in the air. तो जब सन से लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एयर मॉलिक्यूल्स उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं. We had so many applications of Rayleigh's law of scattering. What is Rayleigh's law of scattering? Rayleigh's law of scattering states that intensity of scattered light, जितनी लाइट स्कैटर हुई उसका अमाउंट, उसकी इंटेंसिटी, that is inversely proportional to 4th power of wavelength of light used. It is inversely proportional to the 4th power of wavelength of light used. All right. तो अब इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन ये था, why does the normal sky appear blue in color? उसका रीजन ये है, दो शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं. अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ दे आर स्कैटर्ड द मोस्ट. तो स्काई हमें इन कलर्स का नजर आता है, इन तीनों कलर्स का मिक्सचर ब्लू ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू का ब्लू कलर का मिक्सचर होगा. सो नॉर्मल स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, क्योंकि सबसे ज्यादा कलर यही स्कैटर होते हैं. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन वॉज डेंजर सिग्नल्स, दे आर रेड इन कलर. डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के इसलिए होते हैं दूर से हमें दिख जाए, हमें दूर से साइन पड़ा जाए. ठीक है. तो रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट. इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितनी वेवलेंथ ज्यादा उसका मतलब वो कलर उतना ही कम स्कैटर हुआ, वो उस प्लेस पे कम स्कैटर हुआ, इसका मतलब दूर तक ट्रेवल करेगा. सो दिस कलर बिकम्स विजिबल टू अस फ्रॉम अ डिस्टेंस. इट स्कैटर्स द लीस्ट, सो बिकम्स विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस. ऑलराइट. तो इसलिए डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के होते हैं कि हमें दूर से दिख जाएं, दूर से विजिबल हो जाए. राइट. थर्ड कौन सा था? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई ऑन मून और इन स्पेस? ब्लैक और डार्क. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नो एयर मॉलिक्यूल्स, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. So scattering of light does not take place, so no light is coming to our eyes from there, so that is why it appears black or dark. Next है, why do the clouds appear white in color? Yes, because clouds lie in low atmospheres where large sized molecules are present, dust particles are present, water particles are present. They scatter almost all the colors of light equally. वो एक नहीं सभी कलर्स को स्कैटर कर देते हैं. सो द लाइट कमिंग फ्रॉम क्लाउड कंटेन्स ऑल द 7 कलर्स एंड मिक्सचर ऑफ ऑल द 7 कलर्स दैट इज व्हाइट. सो दे अपीयर टू बी व्हाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई द स्काई अपीयर्स रेडिश ऑरेंजिश एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज?
तो उसका रीजन ये है कि सनसेट सनराइज के टाइम पे सन इज वेरी फार अवे, इट इज नियर द होराइजन, होराइजन के पास होता है, बहुत दूर होता है। तो जब सन रेज वहां से ट्रेवल करती हैं अर्थ की तरफ, तो आते आते बाकी सारे जो शॉर्ट वेवलेंथ कलर जो ज्यादा स्कैटर होते हैं वो हो चुके होते हैं, काफी टाइम लग जाता है, तो वो स्कैटर होते जाते हैं। पहले वॉयलेट होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन, फिर येलो। तो रिमेनिंग लाइट में कौन से कलर बचते हैं जो सबसे कम स्कैटर हुए होते हैं? लॉन्ग वेवलेंथ के कलर, ऑरेंज और रेड। तो इसलिए स्काई उस टाइम पे हमें रेडिश ऑरेंजिश दिखता है। Is that fine? Right? So these were the examples of scattering of light. These were the examples of scattering of light. Then Tyndall effect. What is Tyndall effect? कौन बताएगा Tyndall effect क्या होता है? Scattering of light by colloidal particles suspended in the air. Scattering of light by dust particles suspended in the air. आप ऐसे भी कह सकते हैं. Dust particles, they are colloidal particles. So scattering of light by colloidal particles suspended in the air, in which, due to which the path of light becomes visible and dust particles can be seen moving. For example, when the light is entering a closed room through a small hole, then the streak of light we can see easily, and dust particles dancing in that light, moving zigzag, moving randomly in that streak of light we can easily see, because path of light has become visible. Because of dust particles, they have scattered that light. उन्होंने उस लाइट को स्कैटर कर दिया जिससे वो विजिबिलिटी हमें दिख रही है, और डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर भी आते हैं. दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. Another example was light passing through canopy of trees. So it also gets scattered same way by the air molecules and dust particles, by colloidal particles suspended in the air. Right? Next है atmospheric refraction and its application. So when the refraction takes place in the air, in the atmosphere, it is called atmospheric refraction of light. ठीक है, जब एयर में बेंडिंग होती है और उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं atmospheric refraction of light. So we did this example. Why do the stars appear to twinkle? Why do the stars appear to twinkle at night? तो उसका रीजन ये था कि अर्थ जो है उसके अराउंड एयर डेंस होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है. So these layers they act as denser media, these layers they act as rarer media. So suppose this is a star, actual position of the star. So when the light from a star travels towards earth, it is traveling from rarer to denser medium. It bends towards the normal, goes on bending towards the normal. So to any person present here on earth, it appears. इसी लाइन को स्ट्रेट ले जाओ. आप लोगों ने कॉपी में क्या हुआ है, लाइन इधर बना दी है, जबकि ये लास्ट वाली लाइन को एक्सटेंड करना है आपने. तो दिस इज अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार. अपेरेंट पोजीशन मींस जहां पे हमें स्टार लग रहा है. ठीक है, मतलब यहां नहीं तो वहां लग रहा है. ट्विंकलिंग क्यों लग रहा है बताइए? यहां नहीं तो रिफ्रैक्शन की वजह से वहां दिख रहा है, चलो ठीक है, कहीं और दिख रहा है, हायर दिख रहा है, पर ये हमें ट्विंकलिंग क्यों लग रहा है? अपेरेंट पोजीशन इज डिफरेंट, कोई बात नहीं. रीजन है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. एटमॉस्फेयर नहीं हम कहेंगे, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर. सो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग कंटिन्यूअसली. ये जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी चेंज होती जा रही है कंटिन्यूअसली. सो अपेरेंट पोजीशन इज आल्सो नॉट फिक्स्ड, it is also changing continuously. So that gives the star a twinkling effect. ये आपको इसमें बताना पड़ेगा. Second was, why don't the planets twinkle? अब ऐसी बात, अब planets क्यों नहीं करते twinkle? एक तो रीजन ये है, planets are bigger in size and they are closer to us. एक तो उनका डिस्टेंस भी हमसे ज्यादा नहीं है और बिग साइज के भी हैं. So planets are extended objects. Planets are bigger objects. They can be supposed to be a collection of a number of point-like objects.
वो सारी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्विंकलिंग कर रही हैं, बट उनका जो ग्रुप है वो ट्विंकल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दे नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। जब बहुत सारी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स हमने एक जगह पे इकट्ठी कर ली है, उनका लंप है, तो दे विल देयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल कम आउट टू बी 0 बिकॉज दे विल कैंसल आउट, दे विल नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। ठीक है, तो उनकी एवरेज इंटेंसिटी जो है वो 0 आ जाती है, इसलिए वो हमें इल्यूमिनेटेड लगते हैं, प्लैनेट्स लाइटेड लगते हैं, बट ट्विंकलिंग नहीं लगते बिकॉज दे आर ऑफ बिग साइज। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, आप वहां से इसका आंसर देखिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द सन अपीयर स्फेरिकल एट द नून टाइम एंड अपीयर्स oblate at the time of evening or morning? This is because of atmospheric refraction of light. Noon time पे sun rays they fall normally on the earth. तो sun की rays जब normally fall करती हैं, we know that for normal incidence no refraction of light takes place. Normal incidence के लिए refraction of light होती ही नहीं है, तो इसलिए light bend नहीं होगी और हमें कोई illusion नहीं लगेगा, हमें कोई भी change नहीं लगेगा, उसकी shape original दिखेगी। But at the morning or evening time, sun rays they fall on earth at some angle. They fall obliquely. So because of that, light bends. किसी और एंगल पे लाइट अगर एंटर कर रही है तो लाइट बेंड होगी और रिफ्रैक्शन होगी, मतलब उस रिफ्रैक्शन की वजह से उसके टॉप और बॉटम से जो रेज आ रही हैं, सन के टॉप और बॉटम से जो रेज आ रही हैं, उसकी वजह से हमें उसकी शेप में कुछ डिफरेंस नजर आता है। जैसे हमने पेंसिल बेंड immersed in water appears to be bent and short, तो वो रिफ्रैक्शन होती है उसकी वजह से। ऐसे ही सन के टॉप और बॉटम से जब रिफ्रैक्शन होगी तो हमें उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज नजर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द लेंथ ऑफ डे अपीयर्स टू बी 4 minutes लॉन्गर देन इट्स एक्चुअल लेंथ। उसका रीजन क्या है? अगेन रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब उसमें क्या होता है कि सन जो है सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले अगर हम देखें तो वो होराइजन के नीचे होता है। हमें विजिबल कब होता है? जब वो होराइजन से ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ जी, कराया हुआ बच्चे, कराया हुआ। आप देखो वीडियो में लास्ट ट्यूसडे। दिस इज सन, इट इज बिलो होराइजन 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज। 2 मिनट पहले ये यहाँ पे है, अभी दिख नहीं रहा हमें। ये अर्थ है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। ये रेयरर लेयर्स हैं, ये डेंसर लेयर है, बिल्कुल वैसे ही। सो व्हेन द लाइट ट्रेवल्स टुवर्ड्स अर्थ इट गोज ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को जो यहाँ पे खड़ा है उसको ऐसे लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, लास्ट वाली रे को एक्सटेंड कर दो वैसे, तो उसको सन की इमेज यहाँ पे दिखेगी। सन होराइजन से ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, उसकी इमेज होगी, हमें लगेगा कि सनराइज हो गया, तो 2 मिनट पहले विजिबल होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सनसेट के 2 मिनट्स बाद तक विजिबल रहता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअली 24 आवर्स 4 मिनट का डे हमें लगता है। 2 मिनट पहले दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, तो 4 मिनट्स लॉन्गर जो डे है वो हमें लगता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाई द डे अपीयर्स टू बी लॉन्गर बाय 4 minutes। व्हाई द डे अपीयर्स टू बी लॉन्गर बाय 4 minutes ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हाउ, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इसको। तो आप ये बोलोगे कि बिफोर 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज द सन इज बिलो होराइजन, बट व्हेन द रे फ्रॉम सन ट्रेवल्स टुवर्ड्स अर्थ it goes on bending towards the normal, so it appears as if the light is coming from sun above the horizon, so sun becomes visible above the horizon, so it becomes visible 2 minutes before actual sunrise.
Same way, it remains visible 2 minutes after actual sunset also. So day gets longer by 4 minutes because of refraction of light. Okay, because of refraction of light, day appears to be long. Is that okay? Right? तो ये हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये यूनिट रिवाइज होगा. इसके इतने ही टॉपिक्स हैं. अदरवाइज एक दो डेफिनेशंस और कर लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए. आई थिंक आपको पता भी होगा शायद. व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, पता है किसी को? लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने. इट्स वैल्यू इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड. Any object seems to be moving. Yes. कब? मतलब ये है कि it is the minimum distance between two objects. मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कि so that they can be seen separately through any instrument या through our eyes. मतलब कम से कम दो ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें हम कि वो हमें अलग अलग उनकी इमेज भी सेपरेट दिखे. ठीक है, उसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. या फिर आप कह सकते हो इट इज टाइम फॉर विच द इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन रेटिना ऑफ आवर आई. रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेज इज फॉर्म. तो कितनी देर तक रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज रहती है? मतलब यू कैन से टाइम आफ्टर विच वी कैन सी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. कितने टाइम के बाद हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट जब हट गई है उसका कब तक इमेज रही, उसके बाद हम कब दूसरी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन इन द सिंपल वर्ड. तो लिखिए डेफिनेशन. परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द मिनिमम टाइम गैप between two objects so that they can be seen separately. And for normal eye its value is 1/16 of a second. Its value is 1/16 of a second for normal eye. And this forms the principle of cinematography. This is the reason behind motion pictures. तो उसमें क्या करते हैं, वो दो सीन्स, स्टिल सीन्स को उनके बीच में टाइम गैप 1/16 सेकेंड से कम कर देते हैं. तो वो सीन्स दे अपीयर टू बी मूविंग, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी मूविंग. तो पहले जो मोशन पिक्चर्स थी, पहले सिनेमेटोग्राफी थी, मतलब उसका प्रिंसिपल यही होता था कि वो अभी भी यही है कि उस दो सीन्स के बीच में टाइम गैप इससे कम कर देते तो वो मूविंग इफेक्ट देते. तो लिख लीजिए व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सिनेमेटोग्राफी और व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मोशन पिक्चर्स. दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन से टाइम कम कर देते हैं, उस सीन्स के बीच में टाइम गैप इससे कम कर देते हैं. दूसरा था नियर पॉइंट, वो हमने पहले ही कर लिया था. कैपिटल डी जो है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल पॉइंट, नियर पॉइंट कहते हैं उसको. ऑल्सो इट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखोगे कि आप उसको पढ़ सको. मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी हेल्ड टू सी इट क्लियरली, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई or least distance of distinct vision denoted by capital D. So for normal eye its value is 25 centimeter. हाँ हाँ,